Hello everyone, welcome to BC Academy. Today we will do lecture number 2 on the chapter Atoms and Molecules. So myself Aditi Mishra, I am here to tell you about the chapter Atoms and Molecules. It's a very easy and the interesting chapter of the science books, and it is the most important chapter. So let's start this chapter without wasting our time, and I want to tell you about something about BC Academy that like in different academy you need to give after taking 2 chapters lessons you need to pay fees, but in basic academy all the videos are free for you all. There will be no money will be taken. So let's start this chapter, making this chapter very easy. So let's start it. So what is an atom? So in the previous lecture number 1 we have seen that Lavoisier and Joseph Proust have made 2 laws, which are law of conservation of mass and law of constant proportion in the law of chemical composition. And we have talked about different postulates of the John Gentile, okay? And we have talked about different signs related numbers which were given by John Dalton. And now we will talk about what is an atom. So atom are the smallest particle of the matter, which is the indivisible particle which cannot be divided. As the particles, like Maharishi Conrad says that the particles which are indivisible are known as padarth. Same as Joseph and Lavoisier says that in Greeks it was known as the atom. So the term atom is the term used for the पार्टिकल्स विच आर इंडिविजुअल. ऐसे पार्टिकल जो कि इंडिविजिबल है, ठीक है, उन्हें कहते हैं, ठीक है. और जैसे कि एटम्स जो होता है इसको क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that is the smallest particle matter which is indivisible, which could not be divided. So the atoms radius of the different atoms are measured in the different unit known as nanometer. Nanometer is been used to measure the length of the atoms. What is length? As different units are used to, like meter, centimeter, millimeter, kilometer. Same as here, to measure the radius of the atom we use another instrument known as nanometer. In this video we will talk about IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, atomic mass and atomic number. Atomic mass is a very easy topic, but some students को लगता है कि it's a very tough, but it's not. We teachers are for you to make these topics easier, which you think that it's tough. Nothing is tough. All is made by the human beings only. So now, how big are atoms? So atoms कितने बड़े होते हैं? एटम तो बहुत स्मॉलर होते हैं. जैसे आप छोटे समझो कि चींटी देते होंगे, चींटे से भी छोटे होते हैं. वो बहुत ही छोटे होते हैं जो कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते हैं. जो बहुत ही इनके लिए हाई कंपाउंडेड माइक्रोस्कोप वगैरह से जो देखते हैं उससे भी बहुत ही मुश्किल से ये दिखते हैं एटम्स, ठीक है. एटम्स बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं, ठीक है. हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने हैं. तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने बताया था कि अभी तक टोटल कितने एलिमेंट्स डिस्कवर कर रखे हैं. अभी तक साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रखा है, ठीक है, जिनके बारे में अभी तक सब कुछ पता है. और उन सभी एलिमेंट से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज द हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है. हाइड्रोजन है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और उसका एक एटम का साइज है वो है 1.67 इंटू 10 to the power 24, ठीक है, ग्राम. ये उसका एटम का मास है, ठीक है. एक एटम जो हाइड्रोजन है तो एक इतना बड़ा सिंगल होगा. अब उसमें से उसके एक एटम का मास 1.67 इंटू 10 to the power 24 ग्राम है, ठीक है. और उसके बाद जैसे अब बात आगे आती है,
एटम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का डिवीजन उनमें किया गया है कि एटम्स जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, एक टाइनी पार्टिकल है, एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स। और एटम्स इतने छोटे साइज में होते हैं कि जिन्हें हम अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। एटम्स को हम लोग बना नहीं सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम एटम को बड़ा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एटम का साइज होता है उसको मेनली हम लोग उसके रेडियस से इंडिकेट करते हैं। जो मतलब मैंने अगर कॉपर के एक एलिमेंट लिया तो उसमें सारे एटम्स कॉपर के ही होंगे, सबका मास भी सेम होगा, ठीक है, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। जो एटम्स को एंशिएंट टाइम में इनडिविजिबल पार्टिकल्स कहते थे, पर एटम्स को भी आगे हम डिवाइड कर सकते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल्स में कर सकते हैं। और जब एटम्स एक दूसरे के साथ बहुत सारे एटम्स का सिमिलर ग्रुप ज्वाइन कर देता है तो वो क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स। Okay, a group of atoms is called molecules. So a group of atoms is called molecules, and in molecule there are identical atom. They look like each other, they have a common mass, same everything, ठीक है। ये मेजर बात है मॉलिक्यूल्स के बारे में हम ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो सिंबल्स, अभी क्या हुआ, अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल कर, मतलब IUPAC जिसके बारे में मेरे को बताना था, IUPAC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी एटम्स है उसके लिए उन्होंने जो सिंबल था, पहले जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा कैपिटल में होगा, और सेकंड वाला जो होगा, जो सेकंड टर्म यूज़ करेंगे किसी के लिए, वो क्या होगा, स्मॉल में होगा। फर्स्ट वाला अपर केस में होगा, सेकंड वाला लोअर केस में होगा, ठीक है। ये उन्होंने बताया था, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और जो एटॉमिक मास जो हम अभी बात करने वाले हैं, पहले एटॉमिक मास को हम लोग AMU में बताते थे। ये AMU क्या है, इट्स अ यूनिट, क्या है, इट्स अ यूनिट। अब उसके बाद अब हम लोग जो टर्म यूज़ कर रहे हैं एटॉमिक मास के लिए वो है U, ठीक है। पहले मतलब साइंटिस्ट लोग सोच नहीं पाए कि भाई हम लोग अभी एटम के मास कैसे निकालें। अब एटम्स के मास कैसे निकालें, एटम्स तो इतना छोटा होता है, हम किसी तराजू में किसी चीज़ पे उसे क्या नाप सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, एज इट इज़ वेरी स्मॉल दैट इट कुड नॉट बी इवन सी ऑल्सो, ठीक है, इसे हम देख भी नहीं सकते हैं, तो इसे हम नापेंगे कैसे। तो लोग साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, फिर उन्होंने हाइड्रोजन निकाला, ठीक है। पहले उन्होंने लगा कि हमें एटॉमिक मास के लिए कोई स्टैंडर्ड एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड एलिमेंट सबसे पहले किसको लिया, हाइड्रोजन को लिया। उन्होंने सबसे पहले जो स्टैंडर्ड लिया एलिमेंट वो हाइड्रोजन का लिया, और उन्हें पता चला कि इसके वन एटम जो है, हाइड्रोजन का वन एटम जो है वो है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन की एक एटम की वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने उसे डिवाइड किया, 1 AMU की वैल्यू में निकाली, मतलब कि कितने एटम से ऐसे करा। तो उन्होंने देखा कि जो सारे मतलब कि अलग अलग जो चीज़ें हैं उन सब का, और जैसे अगर मैं बात करूँ क्लोरीन के तो उसका कुछ 35 पॉइंट ऐसे कुछ समथिंग का तरह, मतलब इतने सारे, मतलब कि क्या बताऊँ कि जैसे इधर देख रहे हो आप 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, अगर मैं इसे लिखूँ तो 1.67 तो 0.0000024 टाइम्स लगेंगे, तो उसके बाद हमें वन एटम की मास पता चलेगी। तो ऐसे इतने सारे हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करना याद करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन से जब उन्होंने उनको स्टैंडर्ड यूनिट लिया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। फिर उन्होंने जो सेकेंड स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया, उन्होंने सोचा भाई हम लोग तो ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग अब लेकर देखते हैं। तो उन्होंने जो नेक्स्ट एलिमेंट ये किया इसके ऑक्सीजन, तो उन्होंने जब ऑक्सीजन के साथ सेम किया तो ऑक्सीजन के साथ उनको पता चला कि भाई ये भी कुछ ऐसे ही है। तो इसके जो सारे आंसर्स अलग अलग, जैसे अगर ऑक्सीजन के यूज़ से हम लोग हाइड्रोजन, क्लोरीन, इन सब का मास निकाले तो सब कुछ फ्रैक्शन में आ रहा था,
अब ये लोग सोचे, अब फ्रैक्शन पहले इतने बड़े डेसिमल में आ रहा था, अब भाई ये फ्रैक्शन में आने लग गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया वो लिया कार्बन। किसको लिया? कार्बन को लिया। कार्बन को स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए लिया क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी के साथ भी रह जाए तो मिल जाता है, ठीक है, किसी के साथ भी जाए, किसी के साथ भी आराम से रह लेता है, किसी के साथ भी आराम से मिल जाता है। ये है कार्बन की खासियत, ठीक है। कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक मास जो है 12, क्या है? 12 है, ठीक है। और टोटल कार्बन एटॉम के टोटल 3 आइसोटॉप्स है, ठीक है। कितने आइसोटॉप्स है? देयर आर, कार्बन के टोटल 3 आइसोटॉप्स है। सो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और इधर जो 3 आइसोटॉप्स है, अब वो 3 आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं? C12, C13, C14, ये 3 आइसोटॉप्स है, ठीक है। तो अब उन्होंने देखा कि भाई कार्बन के तो 3 आइसोटॉप्स है, तो उन्होंने सबका C12, C13, C14 तीनों आइसोटॉप्स को यूज़ करके देखा। तो उन्होंने देखा जो बेस्ट आइसोटॉप इस्तेमाल कर सकते थे वो था C12। किसको इस्तेमाल करने से पता चला? उन्हें पता चला जो C12 है इट्स द बेस्ट आइसोटॉप टू यूज़। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड लिया वो था C12, ठीक है, C12 आइसोटोप। सो इसके 1 आइसोटोप मतलब जो C12 था उसका जो C12 का था उसके 1 आइसोटोप जो लिया उन्होंने, उसकी जब उन्होंने निकाला AMU में यूनिट, तो 12 AMU यूनिट, ये इसकी क्या आ गया? ये इसका यूनिट आ गया 12 AMU, ठीक है। और 1 AMU की वैल्यू कितनी हो गई? अब 1 AMU की वैल्यू निकाली तो मास ऑफ C12 एटम, जो C12 का मास है एटम का अपॉन 12, क्योंकि 12 AMU यूनिट है तो 1 AMU की वैल्यू आई। तो इससे उन्हें ये पता चला कि 1 AMU इज 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12। अब इन्हें ये कैसे पता चला? इसके लिए आपके NCERT बुक में एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कि भाई इससे पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगी। आपके लिए एक्स्ट्रा क्या है? जैसे आपने सुना है कि 1 डजन में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 12 आर्टिकल्स होते हैं, है ना। कितने आर्टिकल्स होते हैं? 12 आर्टिकल्स होते हैं। और अगर मैं बात करूँ 1 स्कोर में, ये स्कोर जो है आपके NCERT बुक में है, तो 1 स्कोर में कितने आर्टिकल हैं? तो 1 स्कोर में टोटल कितने आर्टिकल होते हैं? 20 आर्टिकल्स होते हैं। कितने आर्टिकल्स होते हैं? 20 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 1 ग्रॉस की, तो 1 ग्रॉस में कितने आर्टिकल्स होते हैं? तो 1 ग्रॉस में टोटल 100 और 1 ग्रॉस में अगर मैं बात करूं तो 1 ग्रॉस में टोटल 144 आर्टिकल है, ठीक है। टोटल कितने आर्टिकल हैं? 144। 1 स्कोर में 20 और 1 ग्रॉस में 144 आर्टिकल्स टोटल है। तो बार बार मैंने जैसे बोलूं कि मैंने 12 बनानास लेकर आए, मैंने 12 पेंसिल्स लेकर आए, मैंने 12 एप्पल्स लेकर आए, तो इससे अच्छा तो ये होगा कि मैंने 1 डजन लेकर आया है, 1 डजन एप्पल्स लाया है, 1 डजन पेन्स लाया है, ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं बार बार मैं 20 एप्पल्स लेकर आए, मैं 20 बनानास लेकर आई, तो वो सीधा हम ये बोल सकते हैं कि मैं 1 स्कोर बनाना लेकर आई, मैं 1 स्कोर एप्पल लेकर आई। मैंने बोला मैं 144 इरेजर्स लेकर आई हूँ, तो हम ये सीधा बोल सकते हैं मैं 1 ग्रोस इरेजर लाई हूँ। तो ऐसे बार बार 144, 20, 12 ऐसे बार बार बोलने से अच्छा हम इनके स्टैंडर्ड यूनिट में से बताएंगे। किस में बताएंगे? इनकी स्टैंडर्ड यूनिट में बताएंगे, ठीक है भाई। जैसे मैं एक बाज़ार गई, मैं शॉपिंग करने के लिए गई, तो मैं शॉपिंग करने के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरे को वहाँ पे एक एप्पल वाले की दुकान दिखी और उसके साथ उसके पास तरबूज रखे थे, ठीक है। एप्पल थी उसके पास और तरबूज थे। तो मैंने बोला कि भाई 1 दर्जन मतलब कि 1 किलो एप्पल का दाम कितना है? तो वो बोलता कि 1 किलो एप्पल का दाम जो है भाई वो 100 रुपये है। तो मैंने कहा 100 रुपये है, अच्छा। और मैंने फिर सोचा भाई तो 100 रुपये हैं और मेरे पास टोटल कुछ 40 रुपीज़ के आसपास पैसे थे, तो मैं कैसे लेकर जाऊँ?
तो मैंने उसे बोला कि भाई हमें ना, मुझे सिर्फ एक एप्पल चाहिए। कितने एप्पल चाहिए मुझे? सिर्फ एक एप्पल चाहिए। तो बोला भाई एक एप्पल? एक एप्पल क्या, तुम एक एप्पल फ्री में उठा कर लेकर जाओ। तो हम बोलेंगे भाई फ्री में कैसे उठा के ले जा सकते हैं भाई, है ना। तो हम क्या बोलेंगे उसे कि भाई एक एप्पल, देखो 1 किलो में कितने मान लो अगर 1 किलो का एप्पल का दाम है वो 100 रुपये है। कितने रुपये है? 100 रुपये है। और फिर मुझे एक एप्पल चाहिए, मुझे 1 एप्पल चाहिए, तो 1 एप्पल का कितना रुपए होगा? मैंने यही तो बोला। तो आपने देखा कि मैंने एक बगल में तरबूज रखा था। क्या रखा था? तरबूज रखा था। मैंने क्या किया, उस तरबूज के आधे टुकड़े किए। कितने किए? हाफ कर दिया। और मैंने हाफ करके एक तरफ तराजू के हाफ वाला तरबूज रख दिया और वहाँ पे एप्पल्स रख दिया। तो मैंने देखा कि जो मतलब कि तराजू में मैंने एक साइड और ये एक साइड हाफ तरबूज रख दिया, ठीक है, और एक साइड मैंने एप्पल रख दिया। तो देखा कि जो वाटरमेलन वाला था वो डाउन जा रहा है। तो मैंने क्या किया, उस हाफ का भी हाफ कर दिया। मैंने उस हाफ का भी हाफ करने के बाद देखा तो तराजू फिर से नीचे जा रहा है। फिर मैंने थक के हमने क्या किया, उस तरबूज के पूरे 12 टुकड़े कर दिए। कितने पीसेस कर दिए? 12 पीसेस कर दिए। मैंने उस तरबूज के 12 पीसेस कर दिए। और फिर जब मैंने एक पीस ला के रखा तो मैंने देखा कि वो तरबूज के एक पीस के बराबर था। कितने पीस के बराबर था? वो तरबूज के 12 में से एक पीस के बराबर वो एप्पल था। तो ठीक है, मैंने ये देखा। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि मतलब कि ये जो एप्पल, ये जो तरबूज था, ये टोटल 60 ग्राम का था। कितने ग्राम का था? 60 ग्राम का था। तो 60 के मैंने टोटल कितने टुकड़े करे? मैंने 12 टुकड़े करे। तो मैंने ये कह सकती हूँ कि 12 पीस जो है वो 60 ग्राम का वेट है ना। फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 12 पीस जो है वाटरमेलन के वो 60 ग्राम का है। तो 1 पीस कितने का हो गया? क्योंकि मेरा एक पीस वाटरमेलन का एक एप्पल के बराबर था, तो मेरा 1 पीस कितने का हो गया? 5 ग्राम का हो गया। तो मेरा एप्पल भी कितने का हो गया? 5 ग्राम का हो गया। अब मुझे पता था कि भाई 1 किलो एप्पल का दाम 100 रुपये था, तो 5 ग्राम एप्पल का दाम कितना होगा? 5 ग्राम एप्पल का दाम क्या होगा? हम इस 1 kg को थाउजेंड्स में बना लेंगे, ठीक है। 1 kg को मैंने थाउजेंड्स में बना लिया, तो 1000 ग्राम एप्पल का दाम 100 रुपीज़ है। तो 1 एप्पल का दाम कितना हुआ? फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100/1000 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो हाँ भाई, हम तो है साइंटिस्ट बच्चे, तो हम लोगों को ऐसे एक एप्पल का दाम भी पता चल जाएगा। सो वही मतलब कि एक AMU एक किसी 1 पार्ट के, किसी भी एक चीज़ के C12 एटम के 1/12 पार्ट of its mass is 1 C12 atom. So 1 AMU is 1/12 part of mass of 1 C12 atom. मैं यहाँ पे आपके लिए मोर क्लियरली लिख देती हूँ। 1 AMU equals to 1/12 part of mass of 1 C12 atom. So this was the most important thing. तो हम लोगों ने, तो सारे साइंटिस्ट लोगों ने इन सभी थ्योरम का इस्तेमाल किया और इन सभी थ्योरम से उन्हें पता चला कि भाई हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है? 1। कार्बन की एक एटम का मास कितना है? 12। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है? 14। ऑक्सीजन के एक एटम का मास किसका है? 16। सोडियम को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? Na, ठीक है। तो Na का एक का कितना हो गया? 23। मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, तो कितना हो गया? 24, ठीक है। अब सल्फर की बात कर लेते हैं, तो सल्फर को कितना बोला है? 32। क्लोरीन जो है वो कितना है? 35.5। और जो कैल्शियम है वो कितना है? 40। ये जो मेजर थे आपके बुक में थे वही बताएं आपको, ठीक है। इनको याद कर लोगे तो आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे इसके रिलेटेड, एटॉमिक मास के रिलेटेड, तो आ जाएंगे।
तो बेसिकली यही था एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास ज़रा सा भी टफ नहीं था, क्योंकि देखो मैंने आपको उसको बहुत क्लियरली बता दिया है, जिससे आपको मैंने आसान से आसान तरीका हो सके। सो दैट्स ऑल वाज रिलेटेड टू एटॉमिक मास। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।